संप्रदाय में सावन महीने का काफी महत्व माना जाता है। हर साल सावन के महीने में महादेव की पूजा पूरे महीने की जाती है और विशेषकर महादेव का दिन सोमवार को भक्तगण बाबा के पास जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। वहीं इस वर्ष सावन महीने के प्रथम सोमवार को भी पूरे 2 वर्षों के बाद कोरोना के खत्म होने के साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्तगण दामोदर नदी से कलश में जल भरे बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। भक्तजनों की सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रानीगंज के शिशु बागान स्थित चलो अमरनाथ कमेटी की ओर से रात में जल चढ़ाने जाते भक्तों को शरबत, पानी, बिस्किट और चाय खिलाई गई। नमस्कार, আপনাদের টিভি নিউজ। শ্রাবণ মাসের পবিত্র শ্রাবণ মাসের আজ প্রথম সোমবার দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় ভক্ত মণ্ডলীদের ভিড় ক্রমশ বেড়ে চলছে। এখন ঠিক আমরা রয়েছি রানীগঞ্জ শহরতলি এরিয়ার বল্লভপুর থেকে একটু এগিয়ে মেজিয়া ঘাটে, যেখানে এই দামোদর নদ থেকে ভক্তমণ্ডলীরা তাদের বাঁক নিয়ে আসছেন, মহিলা পুরুষ উভয়ে আসছেন এবং তারা এখান থেকে জল উঠিয়ে মোটামুটি কিছু পথ অতিক্রম করে রানীসায় স্থিত কদমডাঙ্গা এরিয়াতে যেগুলো শিব মন্দির আছে সেখানে ওনারা জল শিবের মাথায় দেবেন এবং তাদের ওনারা পূজা অর্চনা করবেন এবং মানুষের কাতারে কাতারে ভিড়, এখনও মানুষ এসেই যাচ্ছেন। ঘটনাস্থলে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ রয়েছে এবং পুরোপুরি ব্যাপারটা ওনারা দেখছেন, পুরো কোথাও যেন কোনো প্রবলেম না হয় এই বিষয়টি ওনারা দেখছেন। পুরোপুরি গাইডলাইন্স ওনারা সবাইকে বলছেন পালন করতে এবং কোনো যাতে এখানে প্রবলেম না হয় এবং কীভাবে পূজা অর্চনা হবে শ্রাবণ মাসের এই পবিত্র মাস শ্রাবণ মাসে দেবাদিদেব মহাদেবের কীভাবে পূজা অর্চনা হয় আমরা কথা বলে নেব বিস্তারিতভাবে। যেসব ভক্তমণ্ডলীরা এখানে আসছে বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন আমার সঙ্গে। नमस्कार। প্রথম সোমবার আজকে কোথায় জল উঠে এসছেন এবং কোথায় যাবেন? বিহাইনাথ যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, কতক্ষণ লাগবে আপনাদের সময়সূচি? হেঁটে হেঁটে যাবেন? আচ্ছা, তারপর কিছু পথ তো হাঁটার আছে নাকি? কত বছর ধরে আরাধনায় হচ্ছে পুজো অর্চনা কতদিন ধরে করছেন শ্রাবণ মাসে? তাও আনুমানিক কত বছর? এখন এই দামোদর নদ থেকে জল উঠিয়ে আপনারা বেরোবেন। কী নাম আপনার? बाड़ी हम लोग मेजिया स्थित दामोदर नदी से हम लोग पानी उठा रहे हैं और हम लोग जोड़ा महादेव को रानी से। अच्छा, कितना सालों से बाबा का पूजा कर रहे हैं श्रावण महीने? हम लोग जब से स्कूल खत्म हुआ तब से लगभग कितना साल? 3-4 साल। कहाँ से आप किस एरिया से पानी उठाए दामोदर नद से? मेजिया से उठाया। और कितना दूरी में चलेंगे? पैदल चलेंगे ना? हाँ। क्या नाम हो आपका? दीपक। आपका नाम? सोनू कुमार। প্রথম সোমবার, ঠিক আছে, ভক্তমণ্ডলীদের ভিড় পুরো উপচে পড়ছে প্রথম সোমবারে। কিরকম কি বিক্রি বাটা হচ্ছে? এই বছরই পুরো ভিড় হয়েছে। প্রত্যেক বছর হয় না, কিন্তু এই বছরই শ্রাবণ মাসে প্রথম সোমবার প্রচণ্ড ভিড়। কী বিক্রি করছেন এখানে? আমরা পটি করছি, বাড়া করছি, বেসন করছি, ভাড়ও করছি, সব ধূপ, আগুনের মালা, সমস্ত কিছু। এই শ্রাবণ মাসে কত বছর ধরে এখানে দোকানদানি করছেন? আপনার 15 থেকে 20 বছর। আপনার নাম? আমার নাম কাজের স্বামী। বাড়ি? প্রথম সোমবার আজকে কোথায় জল উঠে এসছেন এবং কোথায় যাবেন? বিহাইনাথ যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, কতক্ষণ লাগবে আপনাদের সময়সূচি? হেঁটে হেঁটে যাবেন? আচ্ছা, তারপর কিছু পথ তো হাঁটার আছে নাকি? কত বছর ধরে আরাধনায় হচ্ছে পুজো অর্চনা কতদিন ধরে করছেন শ্রাবণ মাসে? তাও আনুমানিক কত বছর? এখন এই দামোদর নদ থেকে জল উঠিয়ে আপনারা বেরোবেন। কী নাম আপনার? আমার নাম শকুন্তলা বর্মা। বাড়ি? গির্জাপাড়া।
पहला सोमवार को इस बार कांवर भक्तों के लिए इस बार चाय बिस्किट और शरबत है, उसके बाद चॉकलेट है, सारा व्यवस्था है। मूड़ी चप का व्यवस्था किए थे, वो जाते हुए कांवरिया लोग सब लेते हुए गए हैं। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं बैनर में चलो अमरनाथ लिखा हुआ है। हाँ। तो मतलब आप लोग यही संस्था से लेकर रहे हाँ, क्या? ये चलो अमरनाथ, ये हमारा अमरनाथ का ग्रुप है। ये बालताल में हम लोग का ये शिव शक्ति जनसेवा संस्था के नाम से ये वहाँ भंडारा लगता है। उसी के हम लोग रानीगंज शाखा के मेंबर हैं, तो उसी के नाम से हम लोग रानीगंज में ये आज पिछले 5 साल से ये भंडारा लगा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ, क्या पद में है? मेरा नाम तरुण बर्मन। अच्छा, इस संस्था का क्या पद में है? ये संस्था का हम और अशोक साव हम लोग 3-4 मेंबर मिलके ये संस्था को हम लोग स्टार्ट किया 5 साल पहले। प्रदीप बर्मन, मुन्ना साव। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। कांगसा के मूचीपाड़ा संलग्न शिवाजी पार्क में युवक के हमले से एक महिला की मौत हो गई। कांगसा थाने की पुलिस सोमवार दोपहर आरोपी को पुनर्निर्माण के लिए लेकर आई। 15 जुलाई को युवक का पड़ोसी दंपत्ति से विवाद हो गया था। उसके बाद युवक ने भुजाली के गुस्से में दंपत्ति को पीटा। जब पति पत्नी को गंभीर हालत में दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मोनी मुर्मू को मृत घोषित कर दिया और उत्तम मुर्मू का गंभीर हालत में इलाज चल रहा था। जांच में तेजी लाने के लिए आरोपी को पुलिस हिरासत से पुनर्निर्माण मूचीपाड़ा के शिवाजी पार्क में मौके पर ले जाया गया। भुजाली को आरोपी के घर से बरामद किया गया। कांगसा थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ফোনে কথা বলছিল না স্যার, ফোনে কথা সকালবেলা বলছিল, সকালবেলা বুঝানো গেল। লাস্টে দুপুরবেলায় এরা 12টা একটা বাচ্চা, তখন এরা 3 জনা এলো। আব্বু বলছে তোমাকে দাদা ডাকছিল, তারপরে নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। তারপরে কী করলি? তারপর কিছু না স্যার, আমাকে টেনে এরা 3 জনা ওইদিকে নিয়ে গেছে রাস্তা ধারে। ওইখানে রোড দিকে মাথা দিয়ে চাকু ছিল। স্যার আগে কি কোথায় চাকু মারলি, কীভাবে মারলি দেখি? চাকুটা কোথা? মারামারি করে ওই জায়গাটায় বহুত ছুটে পালাইছিল, পালিয়েছিল কি? ওখানে যেখানে লেগেছিল, ঢুকে গেল। চাকু লেগেছিল, তারপর ওর স্বামীর সঙ্গে আমার হাতাবাই হচ্ছিল। ও কিন্তু চাকুটা ওর স্বামীর হাতে দিলে লেগেছে। তুই তো স্বামীকেও মেরেছিস, তারপরে চাকুটা কোথায় রাখলি? মেরে যাওয়ার পর दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर महकमा समेत पूरे शहर में सावन की प्रथम सोमवारी पर शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। शिव भक्तों ने दामोदर नदी समेत विभिन्न नदियों में स्नान कर शिवालयों में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया। साथ ही भक्तों ने धतूरा, भांग, चंदन आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना की। मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा। पूरा इलाका बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजामय होता रहा। सावन के प्रथम सोमवारी पर दुर्गापुर के मेन गेट, कादा रोड, MAAMC B जोन, चंडीदास, माया बाजार, DTPS, गांधी मोड़, स्टेशन बाजार आदि मंदिरों और शिवालयों में प्रथम सोमवार पर भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। Islam.
মাথায় প্রথম সোমবার জল ঢাললেন, কেমন লাগছে এবং কী চাইলেন? চাইছি মেয়েটা যেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক, দাঁড়াক, কোনো কিছুতে একটা চান্স পাক, ব্যাস, শরীর ভালো থাক, সবাই ভালো থাক। কেমন লাগছে আজকে যে জল ঢালতে পারলেন? খুব ভালো, খুব ভালো। কেন 2 বছর তো পারেননি? না, আপনার নাম? আমার নাম রানু মণ্ডল। এখানকারই বাসিন্দা? হ্যাঁ, গোপালপুর। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার জল ঢালতে শিব বাবাকে দেখা যাচ্ছে প্রচুর ভক্তের আগমন। আপনিও এসেছেন, কি বলবেন এই 2 বছর যে কোভিড করে যে গেল, ঠিক আছে, ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, আজ কোথাও মনে হচ্ছে সেই দূরত্বটা মিটেছে, কি বলবেন? দূরত্ব ছিল না, দূরত্বটা হচ্ছে অন্তরে। এটা আপনি যেটা দেখছেন বাহ্যিক দেখছেন, অন্তরের টান ছিলই। আর কোভিড ওই জন্যেই আজকে ওভারকাম করে নিয়েছে মানুষ, এই জন্যেই ভক্তও ছিল, ভগবানও ছিল। ভক্ত না থাকলে তো ভগবান হয় না, তো ভগবান তো নিশ্চয়ই ছিল এবং তাদের সেখানে আত্মিক টান ছিল। হয়তো এই বাহ্যিক যেই দেখছেন এই লাইন বা মন্দিরের দর্শন সেটার হয়তো ইয়ে ছিল, এরপর কিন্তু বাট ইয়ে ছিল, অন্তরের টান বা সবাই ছিল এই ভক্তদের। আর আমরা সারা বছরই আছি। বাবার থেকে কি চাইলেন? কিছু না, আবার সবার মিলে সবারই মানে কামনা করি এরকম কোভিড যেন আর কোনো মানুষের জীবনে না ফিরে আসে। আর আমরা এমনি জেনারেলি আমরা ভক্ত আছি যারা প্রত্যেক বছর। আপনার নাম কি এবং কোথা থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, সোনা চ্যাটার্জি। আমরা সবাই ভক্ত, প্রত্যেক সোমবার আমরা এখানে আসি, প্রতি সোমবার। বছরের সারা প্রত্যেকটি সোমবার আমরা এখানে আসি, ভোগ রান্না করি, বাবার সেবাতে লাগি আমরা। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पहले सावन सोमवार के दिन प्राचीनतम एकतेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में पंक्तिबद्ध होकर लोगों ने बाबा का जलाभिषेक किया। मंदिर कमेटी की तरफ से बताया गया कि 2 वर्ष तक कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। स्थिति सामान्य होने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। लगभग 20,000 की तादाद में भक्तों ने जलाभिषेक किया। मंदिर प्रांगण में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। इस बारे में बाबा के भक्त मोहित शर्मा का कहना है कि शिव मंदिर में हर सावन सोमवार पर बाबा का जलाभिषेक करने आते हैं दूर दराज से भी श्रद्धालु। यह मंदिर शहर के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दूसरी तरफ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है एवं मंदिर कमेटी की तरफ से भी श्रद्धालुओं की सुविधा असुविधा पर ध्यान रखा जा रहा है एवं आगामी दूसरे सोमवार से श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आज बांकुड़ा एकतेश्वर मंदिर है, बांकुड़ा एकतेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जो समागम है, आज 20 से 25,000 लोगों का समागम है। भोर 3 बजे से मंदिर का पट खुला है, उसके बाद से अभी आप देख सकते हैं पूरा भीड़ तो भीड़ ही है बाबा के भक्तों की। ये एकतेश्वर मंदिर हमारे बांकुड़ा जिले का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बांकुड़ा एकतेश्वर मंदिर बांकुड़ा जिले का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में आज सावन महीने के पहले सोमवार, पहला श्रावण बंगाली तिथि में आज जो समागम हुआ है, 20 से 25,000 भक्तों का समागम हुआ है। इस समागम में आज भक्तों का हर मनोकामना पूर्ण होता है। इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी 2 साल कोरोना के लिए बंद होने के कारण इस बार मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। और श्रावणी मेला में जो हमारे बाबा को जल चढ़ाते हैं, उसकी भी लंबी कतार होगी बाबा के भक्तों की। आपका नाम? मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं बांकुड़ा बाजार टाउन से हूँ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। मारे गए ईसीएल कर्मी की पत्नी अपने ही पति के बदले नौकरी की मांग को लेकर कई सालों से दर दर भटक रही थी। किसी ने उसे नहीं दिया उनका साथ।
मजबूरन अपने बच्चों को लेकर 7 ग्राम एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में सोमवार को दिशारी के तहत जल्द नौकरी देने की मांग पर एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी। महिला अनीता मिश्रा ने कहा कि उनके पति विनय कुमार मिश्रा, जो नीमचा कोयलरी में टामर मजदूर के रूप में अपने कार्यरत पद पर थे, 12 मार्च 2020 में उनकी मृत्यु कोरोना के कारण हो गई थी। लेकिन उनकी सौतेली सास फूलमती देवी के द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने एवं कोर्ट में मामला दर्ज कराने के कारण उनकी नौकरी में विलंब हो रहा है, जबकि वे दिशारी के तहत नौकरी के लिए संबंधित कागजात 11 मार्च 2021 में ईसीएल प्रबंधन के समक्ष जमा करवा चुकी हैं। लेकिन 6 महीने के बाद 15 सितंबर 2021 में नौकरी के लिए स्क्रीनिंग और मेडिकल हो गया, परंतु उस समय से उनके फाइनल कागजात एरिया प्रबंधन के पास धूल फांक रही है। उन्होंने कहा कि वे अपने 2 बच्चों के साथ भूखे मरने पर मजबूर है। उन्होंने प्रबंधन से जल्द नौकरी देने की मांग की है। वहीं 7 ग्राम एरिया महाप्रबंधक AK आनंद एवं पर्सनल मैनेजर देवज्योति घोष ने कहा कि नौकरी मांग रही महिला को आश्वासन दिया गया है। सौतेली सास फूलमती देवी को उनके साथ बैठकर मामले का हल निकाल दिया जाएगा। GM ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं दोनों बच्चे को लेकर, क्या कारण है? मेरा हस्बैंड डेट कर गए हैं, उनको डेट किए 2.5 साल हो गया। 12 मार्च 2020 में डेट किए हैं। मेरा स्कैनिंग हुए 10 महीना हो गया, अभी तक मेरा नौकरी का कोई सुनवाई नहीं है। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। मेरा कोई सहारा नहीं है। हम बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे? खाने पीने के मेरे बच्चे लोग को कुछ नहीं है। APM देवजीत घोष जो है वो मेरा फाइल को अनलीगल ढंग से रोक के रखे हैं। कितना दिन पहले डेट किया था आपका हस्बैंड? 12 मार्च 2020, 2.5 साल हो गया। क्यों रोक के रखा फाइल आपका? ऐसा ही रोक के रखे हैं। सास का ऑब्जेक्शन था उसमें। मेरा हस्बैंड का स्टेप मदर जो है उनका अधिकार देने को हम तैयार है, फिर भी वो नहीं साइन कर रही है। तो कानूनी लड़ाई आप लोग का यहाँ पर किस लिए आप लोग बैठे हुए? मेरा स्कैनिंग मेडिकल हो चुका है। ये तो पारिवारिक बात है ना आपका, इसके लिए रोक रखा है, तो इसमें आप नहीं, मेरा जैसे बहुत लोग का नौकरी हो चुका है इसमें ऑब्जेक्शन में। अभी आप क्या चाहते हैं? हमको नौकरी चाहिए। मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई ढंग से होना चाहिए। मेरे बच्चे को खाने पीने को घर में कुछ नहीं है। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कुछ भी सहारा नहीं है मेरा। कहाँ काम करता था आपका हस्बैंड? आप बोला नीमचा। आपका परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं है। आप लोग अभी बैठे रहेंगे यहीं पर? हाँ, जब तक ना हमको लिखित करके नहीं देंगे कि हाँ आपका फाइल हेडक्वार्टर भेज देंगे, तब तक ना हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हमको घर में खाने को कुछ भी नहीं, हमको ऐसे भी मरना है, तब धरना दे के ही मरेंगे यहाँ पर। आपका पूरा नाम? अनीता मिश्रा। कहाँ का रहने वाला? नीमचा कोयलरी। पेपर उठिए। अपना हक के लिए। हक मतलब क्या? मेरा हस्बैंड को डेट को 2 साल हो गया। 12 मार्च 2020 को डेट किया। मेरा स्कैनिंग मेडिकल हुए 10 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। एरिया के APM जो है देवज्योति घोष मेरा फाइल को गैर कानूनी ढंग से रोक के रखे हैं। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बच्चा लोग को पालन पोषण कहाँ से करेंगे? कोई सहारा नहीं है मेरा। आज आपने दोनों बच्चे को लेके बैठे हुए क्या? हाँ। कितना दिन हुआ पेपर सबमिट किया हुआ? पेपर कितना दिन? लगभग 1.5 साल तक हो गया होगा। क्या बता रहा है ECL से? क्या अभी तक कोई क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपना हस्बैंड डेट मैंने ड्यूटी आवर्स? घटना ये है जो इस महिला का हस्बैंड जो है मार्च 2020 में एक्सपायर कर गए। नीमचा अमकोला के एम्प्लॉई थे और हस्बैंड के डेथ के बाद इन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट का जो नेशनल फुल वेज एग्रीमेंट है उसके अनुसार अप्लाई किया और अप्लाई के बाद इनका मेडिकल और स्क्रीनिंग जो है पिछले 10 महीना पहले जो है हो चुका है। लेकिन सास का जो है नो ऑब्जेक्शन का बहाना बना करके के इनका एम्प्लॉयमेंट फाइल जो है रोक करके आज रखा गया है। 10 महीना से किसी तरह के फाइल में कोई मूवमेंट नहीं है
बाध्य होकर के महिला जो है वो हंगर स्ट्राइक पे गई हैं। हम लोग जो है इनके साथ मोरल सपोर्ट में है। क्या कारण लग रहा है फाइल ना ये करने के लिए कहीं? अब कारण तो मुझे लग रहा है, जो कारण जो है वो एक तो गैर कानूनी है, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा केस है जिसमें कि सास जो है नो ऑब्जेक्शन में साइन नहीं की है, लेकिन फिर भी फाइल जो है प्रोसेस करके भेजा गया है। हम लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि फाइल जो है आप हेडक्वार्टर भेज दें, हेडक्वार्टर इसके बाद जो है जो तय करना होगा करेगा, नौकरी देना है ना नहीं देना है तो हेडक्वार्टर तय करेगा। आप लोगों राजनीति द्वारा इन महिला के पक्ष में क्या आंदोलन में आप लोग रहेंगे? हम लोग तो फिलहाल इनके साथ जो है जो इनका हंगर स्ट्राइक है इसमें मुरली जो है इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इनका कोई है नहीं और हम जहाँ रहते हैं हमारे ही आसपास में ये रहती है। ईसीएल द्वारा अभी तक कोई खबर आया है? ईसीएल द्वारा कोई अभी खबर विशेष नहीं आया है। 2 तारीख को नोटिस दिया गया था। हम लोग भी आशा कर रहे थे कि इस दरमियान जो है बुला कर के महिला को उससे बातचीत किया जाएगा, कोई समाधान सूत्र निकाला जाएगा, लेकिन इस तरह का कुछ भी हुआ नहीं है। 16 तारीख को शायद महिला को एक चिट्ठी दिया गया है, जो इनका फाइल और पेपर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हेडक्वार्टर में भेजा गया है कॉम्पिटेंट डिसीजन के लिए। अभी भी वो अप्रूवल के लिए, चाहे वो फाइल जो नौकरी के लिए प्रोसेस करके भेजा जाता है उसके लिए नहीं भेजा गया। और ये जिस चीज़ के लिए भेजे हैं, ये बात जो है पिछले 8 महीना से यही बात कहा जा रहा है। हम लोगों को विशेष सूत्र से ये भी जानकारी है, जो हेडक्वार्टर से इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप लीगल एडवाइस ले करके इस फाइल को प्रोसेस करके भेज दीजिए, लेकिन उसके ऊपर भी सतग्राम मैनेजमेंट का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई इनके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। आपका नाम? राजकुमार सिंह। अब क्या पद पे है? श्रीपुर एरिया जेसीसी मेंबर, बुधेरी मजदूर कांग्रेस एचएमएस। জামুড়িয়া से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। স্টিল কার্মেল স্কুলে পড়তাম, স্টিল কার্মেল দুর্গাপুর। আমি আইসিএসসি 2022 পরীক্ষা দিয়েছি। কি রেজাল্ট করেছো? আমি 99% মার্কস পেয়েছি। স্কুলের প্রথম? হ্যাঁ। কতটা ভালো লাগছে এত নম্বর? খুবই ভালো লাগছে। আমি 99% তো এক্সপেক্ট করিনি, আমি ভালোই এক্সপেক্ট করেছিলাম, কিন্তু 99% খুবই ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ। ভবিষ্যতে কি নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে? আমি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েই পড়তে চাই, এখন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে। কার কাছ থেকে বেশিরভাগ মানে সাহায্য পেয়েছিল পড়াশোনা? সব থেকে বেশি সাহায্য পেয়েছি আমার বাবা মায়ের কাছ থেকে। আমাদের স্কুলের টিচাররা তো যখনই চেয়েছি তখনই সাহায্য করেছে। র্যাঙ্ক কী করেছে? স্কুলের র্যাঙ্ক আমার ফার্স্টই এসেছে, এখনও অল ইন্ডিয়া বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের র্যাঙ্ক আমি জানি না। কী নাম তোমার? রশ্মি লাহা। আপনার মোটিভ কী আছে? আমি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চাই। এই যে পড়াশোনা আলাপ ছেড়ে কী জিনিসের উপরে বেশি হবে? আমার সব থেকে ভালো লাগে মুভি দেখতে আর ফটোগ্রাফি। মুভিতে কোন মুভি সব থেকে বেশি মানে ফেভারিট? আমার বলিউড বা থ্রিলার যে কোনো মুভি ভালো লাগে। বাড়িতে কে কে আছেন? আমার বাবা মা দিদা। আচ্ছা, তোমার বাবা তো ডাক্তার, তাহলে হঠাৎ তুমি ট্র্যাক চেঞ্জ করছো কেন? কারণ আমার বায়োলজি পড়তে খুবই মানে এত পড়তে হয়, তো আমার ঠিক ভালো লাগে না বায়োলজি পড়তে। ঠিক আছে। এমনি ছোট থেকেই ও যে খুব পড়তো তা না, আবার ছোটো থেকে ও একটু সিনসিয়ারই ছিল যে আমাকে ভালো করতে হবে, বা আমি ওইটুকু আর কি, বেশি পড়ে না কিন্তু যতটুকু পড়ে ঠিক পড়ে। আর আমরা ওকে কোনো কিছুতে ফোর্স করতাম না, মানে ওর যখন পড়তে ভালো লাগতো তখন ও পড়বে। আমরা রেগুলার মুভি দেখতে যাই, তো সেই ওরও মুভি দেখার খুব নেশা, তারপর খেলা দেখা, এগুলো মানে আমরা কখনো কোনো বলি না যে তুমি মুভি দেখতে যাবে না, তুমি পড়বে বা এরকম। বাচ্চাদের একটা এই কোভিড সিচুয়েশান পর আর কি, আমি একজন ডাক্তারই বলতে পারি, তো তাদের একটা মেন্টাল স্টেবিলিটি থাকা এটা খুব দরকার আর কি একটা বাচ্চার জন্য। এমনি ওরা 2 বছর প্রায় ঘরবন্দি ছিল, স্কুল যথেষ্ট অনলাইনে খুব ভালো পড়াশোনা করিয়েছে, বা টিচাররাও খুব টেক কেয়ার করেছে। স্টিল আমি এবং আমার মিসেস যেহেতু দুজনেই মেডিকেল প্রফেশনের সাথে আমরা সারাদিন থাকতাম না, ও বাড়িতে একাই থাকতো, তো একটা 2 বছরের একটা মানে একটা একাকিত্ব আর কি, তো সেটা ও খুবই ফিল করেছে।
তো সেইগুলো ওভারকাম করেও ও এই যে রেজাল্টটা করেছে, এটা ডেফিনেটলি তো ওর এবং ওর যারা টিচার তাদের ডেফিনেটলি তাদের ক্রেডিট। কী র্যাঙ্ক করেছে ও? অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে এখন অবধি যা খবর আছে ও দুর্গাপুরে টপ করেছে। অল ইন্ডিয়া লেভেলে যে ফার্স্ট হয়েছে আর কি, তো সে পেয়েছে আমাদের কাছে যা খবর আছে 498 আউট অফ 500, ও 495 পেয়েছে। মানে প্লেস ওয়াইজ যদি বলেন প্লেস ওয়াইজ, তো ওর পজিশান মানে আমার হিসাব মতো ওর 5th আসছে আর কি, বা 5, 6, 7, 8 4th আসছে। আর একটা প্লেসে অনেকজন করে স্টুডেন্ট আবার আছে, তো সেই অনুযায়ী হয়তো ওর 50 এরকম একটা অল ইন্ডিয়া লেভেলে থাকার কথা আর কি। আপনার নাম? আমি হলাম ডক্টর আশিস কুমার লাহা। কোথায় থাকেন? আমি বিধাননগর আমার বাড়ি। আমি ECL এর সিনিয়র ডেপুটি CM। কোন এরিয়াতে? আমি বাংকুল এরিয়া আছি। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। भारतवर्ष के साथ साथ पूरे देश ने कोरोना जैसे बीमारी से एक बहुत बड़ी जंग जीती है। सभी लोगों को आने वाले दिनों में भी सुरक्षित रखने के लिए अभी भी कई जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही सराहनीय कार्य रानीगंज के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी किया। सोमवार को चेंबर के सभागार में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के डोज वैक्सीन लगाने आए सैकड़ों लोगों को दिया गया। चेंबर ने लगभग 450 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। माइक लगवाइए, चंदन भैया थोड़ा सा भैया थोड़ा सा ना पड़े हमारा कॉमर्स की द्वारा मतलब वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, कितना लोगों ने अभी तक वैक्सीन का लाभ उठाया? अभी तक लगभग 150 लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ उठा लिया है। आज लगभग 450 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। आप जैसा जानते हैं कि पूरे इंडिया में 200 करोड़ वैक्सीनेशन का माइलस्टोन रीच कर गया है। इस मौके पे रानीगंज में वैक्सीनेशन कैंप लगा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एक दिवसीय है ना, ये चलते रहे? ये एक दिवसीय आज सिर्फ 1 डे है, और भी यदि रिक्वायरमेंट होगा तो और भी लगेगा कैंप। कितने बजे से स्टार्ट आज हुआ? आज सुबह 11 बजे शुरू हो गया था, 4 बजे तक। बूस्टर डोज को भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है 18 साल से 59 साल। 18 से 59 साल को बूस्टर डोज दिया जाएगा। कोवैक्सीन और कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों दिया जाएगा। आपका नाम परिचय? अरुण भटिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মন
मनपसंद आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। अग्राधिकार वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी की ओर से NGO के सचिव संदीप बोस के जन्म दिवस काफ़ी अनोखे और अच्छे तरीके से मनाया गया। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बर्नपुर के नरसिंह बांध दुबेपाड़ा कम्युनिटी हॉल में दुर्गापुर विवेकानंद अस्पताल की सहयोगिता से एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का लाभ लगभग 100 से भी अधिक लोगों ने उठाया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर यूनाइटेड होप फाउंडेशन NGO 77 नंबर वार्ड काउंसिलर गुरमीत सिंह, समाज सेवी अभी गोस्वामी उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम का संचालन अग्राधिकार के सदस्यों ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
रानीगंज थाना की पुलिस ने रविवार की रात 42 वर्षीय परमेश्वर पासवान नामक एक शख्स को तमंचे एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया। रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप्तो दास गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को रविवार 2 पाइप गन और 1 राउंड गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। रात को नुपुर ग्राम जाने वाले सड़क के किनारे संदेहजनक अवस्था में उसके खड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पुलिस पहुंचकर उस युवक को आग्नेयास्त्रों को जब्त कर उसे धर दबोचा। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि वह व्यक्ति छिनताई के मकसद से वहां खड़ा था। पुलिस यह पता लगा रही है कि उसके द्वारा घटना को अंजाम देने के लिए और कोई साथी तो नहीं था। गिरफ्तार युवक को सोमवार को आसनसोल जिला न्यायालय भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि बीते कुछ माह पूर्व इसी नुपुर ग्राम स्थित न्यू कॉलोनी में एक घर में प्रवेश कर हथियार के बल पर अपराधी छिनताई कर फरार हो गया था। आज तक पुलिस उस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सोमवार को DPL आदि वेदी पूजा कमेटी की ओर से खूंटी पूजा के तहत पंडाल निर्माण कार्य शुरू किया गया, जहां पुरोहित के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर पंडाल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। मौके पर तृणमूल जिला नेता उत्तम मुखर्जी, पार्षद शशांक शेखर मंडल, स्वपन बैनर्जी, क्लब अध्यक्ष सौमित्रो सेन गुप्ता, सचिव उमापत दास सहित पूजा कमेटी के दर्जनों महिला पुरुष मौजूद रहे। श्री उमापत दास ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 वर्षों से पूजा का आयोजन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इस बार बड़े स्तर पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के 80 वर्ष पूर्ति पर इस बार बिहार राज्य के गया जिले स्थित बौद्ध मंदिर के तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जाएगा। पूजा का आयोजन कोरोना नियमों के अधीन किया जाएगा। पूजा का उद्घाटन नवरात्र के तृतीय दिन किया जाएगा। वहीं पूजा के दौरान सप्ताह भर व्यापी कोविड नियमों के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा वस्त्र वितरण एवं कोरोना से बचाव के लिए सामग्री का वितरण किया जाएगा। गणेशति नाना देवता खुटी पूजा कर्म आरंभ करमणि ओम पंडाहं भवन्तु दे भवन्तु ओम पंडाहं ओम पंडाहं ओम पंडाहं ओम कत्तविषेण गणेशति नाना देवता खुटी पूजा कर्म आरंभ करमणि ओम स्वस्ति भवन्तु दे भवन्तु। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।